In the last class, we finished the classifications of signals based on the continuous time signal, discrete time signals, even signal, odd signal, causal signal, non-causal signal, and we did little introduction about the periodic signal and aperiodic signal. So let us move further with periodic signals and aperiodic signals. So if we have a function ft and it is equals to shifted version of a time period where t is fundamental time period and k is integer. Suppose we had a function like this, and if I shift this function, if k is equals to 1 or k is equals to 2, then if I shift this function to 2 pi where t is equals to 2 pi, then f t plus 4 pi, अगर मैं शिफ्ट इस सिग्नल को 4 पाई से शिफ्ट करूं, minus pi minus 2 pi, so again we will get the same function. So this is a periodic function, periodic signal. So we saw that if we have sine t, sine 2t, sine 4t, 4t, then fundamental time period is 2 pi, 2 pi by 2, 2 pi by 4 means pi by 2 means pi means 2 pi. So it means the function is moving faster. This signal is moving faster than 2t. How much time? Twice. And how much time? Twice. So sin kt में जो k है, it represents the velocity of the signal. Velocity of signal. If we have a function like sine k omega naught t, in that case fundamental time period will be 2 pi by k omega naught. Then fundamental time period will be 2 pi by k omega naught. There is one more interesting factor about this. About the sine function, that it is limited between -1 to +1. For the half time period, its value is +1. For the half time period, its value is -1. So for the overall time period, its value is 0. So suppose we have this sine function. So for the half time period, it is +1. For half time period, another half time period, it is -1. So overall value of the signal is 0. So if you integrate a signal the value is 0. Or sorry 2k pi, or
बिना सोचे समझे ये आपने कर देना है। We can evaluate sin t sin 2t dt और 0 to 2 pi cos t cos 2t dt और 0 to 2 pi sin t cos 2t dt. The value of all these signals will always be 0 because जो टाइम पीरियड है इनका वो 2 पाई के अंदर है। अब आप साइन साइन करोगे तो ये साइन सी प्लस डी बन जाएगा, साइन ए साइन बी करके इस तरह बनेगा। ये साइन कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस बनेगा, ये कॉस कॉस बनेगा। एक बार वैल्यू 1 आ जाएगी, एक बार वैल्यू 3 आ जाएगी। 0 to 2 पाई में करोगे तो ये वाली वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0। इससे सिमिलरली इसी में इसमें भी ऐसा ही बनेगा, माइनस आएगा यहाँ, कॉस ए प्लस कॉस बी बनेगा, इसमें साइन ए प्लस साइन बी बनेगा। तो इस वाले जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट से ये जो सिग्नल, ये जो इंटीग्रेशंस की वैल्यू होंगी वो 0 आएंगी। Find the fundamental time period of cos pi by 4t minus 3. Find the fundamental time period of cos t by 5 pi by 4 minus pi by 4t minus 3. इस केस में लिखेंगे नोट to determine the fundamental time period, do not consider the shifting factor. तो शिफ्टिंग फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमें निकल के आता है पाई बाई 4t, के की वैल्यू k इज इक्वल्स टू पाई बाई 4t और फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई k। इट मीन्स 2 पाई बाई पाई इंटू 4, that is 8 answer. Fundamental time period for this signal is 8. तो यहाँ पे एक नोट और लिख लेंगे, for fundamental time period shifting does not affect while scaling does. और फंडामेंटल टाइम पीरियड शिफ्टिंग इफेक्ट नहीं करती है। ये जो स्केलिंग फैक्टर है ए, यही सिर्फ फंडामेंटल टाइम पीरियड को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज सिग्नल e to the power jt. It is very important signal, e to the power jt. So it is written as cos t plus j
sine t, the magnitude of the signal is cos square t plus sine square t का root is equals to 1. The angle of e to the power jt tan inverse sine t by cos t tan inverse tan t, it means t. So any signal ft can be written as mod of ft multiplied by angle of ft. So e to the power jt can be written as mod of jt angle of e to the power jt. It means 1 angle t. So 1 angle t represents e to the power jt. So magnitude of the signal is 1. Magnitude of the signal is 1. The phase of the signal is t. So when the phase of the signal is t, it means it would be a circle like this, having fundamental time period टू पाई, और एंगल कहाँ से लेंगे हम, ये एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें लिख सकते हैं, अब देखो इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड निकल के आएगा, कॉस टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई, साइन टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई, ई टू द पावर जे टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई. इसमें लिख लो नोट, e to the power jt is a sinusoidal signal with fundamental time period 2 pi. Whatever is valid for cos t and sin t is also valid for e to the power jt. Graphically, e to the power jt is a unit circle and periodic signal with fundamental time period 2 pi and angle t anti-clockwise from the 0th angle. कैसे चलना है हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज. ई टू द पावर जी टी कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो जीरो, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जीरो है, जीरो से पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, और वापस से आ जाएगा 2 पाई पे. तो जीरो और 2 पाई सेम रहेंगे. अगर आप ई टू द पावर जे टी को 2 पाई में लिख दो, यानी कॉस 360 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, वापस से आपको कॉस मिल जाएगा, वापस से साइन मिल जाएगा, तो ई टू द पावर जे टी मिल जाएगा. So fundamental time period is 2 pi and it represents a unit circle because angle, जो angle change हो रहा है, magnitude क्या रहेगा हमेशा 1. एंगल चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. So e to the power jt is a periodic signal with fundamental time period 2 pi and angle will always be measured anti-clockwise. ठीक है. सिमिलरली
जैसे उसमें था, अगर हम e⁻2gt की बात करें तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई हो जाएगा। e⁻4gt की बात करें तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई बाई टू हो जाएगा। और इफ वी टॉक अबाउट jkt तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई बाई k होगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट k ओमेगा नॉट t देन इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड k ओमेगा नॉट होगा, to the power j k omega naught t, where omega naught is called angular velocity। दो तरीके की वेलोसिटी होती है, एक तो लीनियर, कोई एक कार है वो रोड पर एक जगह से दूसरी जगह गई, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोई चीज अगर सर्कल में मूव कर रही है तो उसके लिए उसकी जो वेलोसिटी देखेंगे वो एंगल से देखेंगे, कितने कितने एंगल पर वो मूव कर रही है। इन दैट केस जो नॉर्मल वेलोसिटी v होती है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। Thus another signal is e to the power minus jt, so it will be cos t minus j sin t। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई, इसका भी फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई, तो इसका भी फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होगा। बट इसका एंगल जो इसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस जे टी का वो 1 होगा, बट जो एंगल होगा दैट विल बी माइनस टी। इन दैट केस ये क्लॉकवाइज में जाकर ये एंटी क्लॉकवाइज में जाकर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। सो e to the power minus jt is same as e to the power jt but moving in clockwise direction। Another signal is e to the power j omega naught n, so it is a discrete signal। कैसे होगा डिस्क्रीट सिग्नल? ये तो अगर मैं इसको देखूं तो इट इज n इज इक्वल्स टू 0, n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6, n is equals to 7, n is equals to 8 and n is equals to 9। सो 9th वाले सैंपल पर ये वापस से उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड सपोज करो 9 है। इफ t is equals to 9, in that case इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। The problem with the discrete signal is samples should always be integer। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ ए discrete signal is defined as
number of samples taken by the signal to repeat itself. Sample should be integer. तो ये नंबर 1 2 3 4 होगा, 1.5 नहीं हो सकता. मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्क्रीट में सैंपल्स जो होंगे वो हमेशा इंटीजर होंगे. तो फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल इज डिफाइंड एज number of samples taken by the signal to repeat itself. So fundamental t will always be integer. जबकि ये वाली कंडीशन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में नहीं थी. तो फंडामेंटल टाइम पीरियड जो डिस्क्रीट सिग्नल में जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा इंटीजर होगा. अगर वो इंटीजर नहीं है तो दिक्कत होगी. इंटीजर हो या ना हो हम उसको क्या बोलेंगे, टी मस्ट बी रेशनल. टी मस्ट बी रेशनल. टी मस्ट बी rational. It cannot be फ्रैक्शन. कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे determine the fundamental time period of the following signals. Determine the fundamental time period of the following signals. इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई पाई यानी कि 2. इसका 2 पाई बाई 3 पाई 3 पाई यानी कि 2 बाई 3. इसका 2 पाई बाई √2 यानी कि √2 पाई. इसका 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3. So it is integer, so this signal is periodic. It is not integer, this signal is aperiodic. This signal is aperiodic. Again, pi is irrational number, so this signal is aperiodic. Now let us talk about this signal. This signal ये aperiodic है because this number of samples 2 by 3. अगर मैं इसमें k से डिवाइड करता हूँ, कोई स्केलिंग कर देता हूँ सिग्नल के अंदर, और वो स्केलिंग इस तरह करता हूँ कि ये इंटीजर बन जाए, ये इंटीजर बन जाए, इन दैट केस द सिग्नल विल बी पीरियोडिक. इस चीज को हम आगे देखेंगे, अभी समझ में आएगा और अच्छे से बताता हूँ. तो फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई सिग्नल अगर इंटीजर नहीं है डिस्क्रीट में, तो फंक्शन विल बी if for a function to be periodic, a discrete time signal to be periodic, the time period should always be integer. If it is not integer, then it will be aperiodic. But if it is rational, then it can be made periodic. It will be aperiodic, but after some modification, it can be made periodic. So the conclusion is e to the power jt or e to the power j omega naught t is always periodic, while e to the power j omega naught n may or may not be periodic. E to the power j n omega naught
may or may not be periodic. तो जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो हमेशा पीरियोडिक होगा, बट जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसमें कंडीशन होगी t मस्ट बी इंटीजर, t मस्ट बी इंटीजर। इसमें हम एक लाइन और लिख सकते हैं, इफ if for a discrete time signal t is rational, then it is aperiodic, but it may be made periodic by multiplying it with a minimum possible integer, so that तो सपोज हमारे पास t है 3/8, तो ये रेशनल नंबर है। अब मिनिमम ऐसा कौन सा इंटीजर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं, कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि ये जो है इंटीजर बन जाए, ओवरऑल इंटीजर बन जाए। इफ k इज इक्वल्स टू 8, then it will be, if k is equals to 8, then it will be 3, t is equals to 3। so k is equals to 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 3 बन जाता है। तो इसको हम पीरियोडिक बना सकते हैं। अगर कोई टाइम पीरियड रेशनल है, उस सिग्नल को, ऐसा एक स्पेशल सिग्नल हो जिसका टाइम पीरियड रेशनल हो और वो अपीरियोडिक होगा, बट हम उसको पीरियोडिक बना सकते हैं by multiplying a possible minimum possible integer so that t becomes overall integer। इस चीज को और आगे देखते हैं अभी। इसको देखने से पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, तब और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की। देखो, इसको देखने से पहले मैं आपको एक सिग्नल बताता हूँ, कॉम्ब सिग्नल, और इट इज कॉल्ड इम्पल्स ट्रेन। कॉम्ब वो जो सिर पे करने वाले कंघी होती है, वो कैसी होती है, ऐसी होती है ना, इसीलिए इस सिग्नल को बोला है कॉम्ब सिग्नल। ये कैसे होगा, एक इम्पल्स की ट्रेन होगी विद द सेम एम्पलीट्यूड, ये कॉम्ब सिग्नल है। अगर मैं इस किसी भी सिग्नल को, कोई भी एक्स वाई जेड सिग्नल हो, एक्स टी, अगर मैं इस सिग्नल को इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इट मीन्स इफ आई कैलकुलेट, इफ आई कैलकुलेट एफ टी इंटू एक्स टी, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये वैल्यू
फिर इस वाले पॉइंट पर जो वैल्यू होगी ये वैल्यू, फिर इस वाले पॉइंट पर जो वैल्यू होगी ये वैल्यू, देन ये, देन ये, देन ये, फिर इस पर नीचे की तरफ एक वैल्यू है, देन ये। तो कुछ कुछ ऐसे जो ये सिग्नल बना इस तरह से मिलेंगे हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने किया क्या, अगर हम किसी भी सिग्नल की कंटिन्यूस सिग्नल का मल्टीप्लाई कर देते हैं इम्पल्स ट्रेन और कॉम सिग्नल से, वी गेट ए सैम्पल्ड सिग्नल, वी गेट ए सैम्पल्ड सिग्नल। ये एक तरीके का डिस्क्रीट सिग्नल है ना, जिसमें सिर्फ इंटीजर्स जो वैल्यू हैं उन पर ये डिफाइंड है। बट अभी ये क्या है, अभी ये कंटिन्यूस सिग्नल है। इस कंटिन्यूस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, सैम्पल्ड सिग्नल। यानी कि आपने उसको कंटिन्यूस ना बना के उसको कैसे सैंपल्स में डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स में। फिर एक और इसमें एक टेक्निक होती है, उससे चेंज करके हम उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम पीरियड को डिस्क्रीट में चेंज कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड, अगर हम कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट में चेंज करना चाहते हैं तो हमें किसी भी सिग्नल को कॉम सिग्नल से मल्टीप्लाई करना होगा या उसकी सैम्पलिंग करनी होगी। एग्जैक्टली वर्ड इज सैम्पलिंग। सो व्हाट सैंपल्स डू, किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। Any continuous time signal can be converted into discrete time signal by means of sampling. And what is sampling? By multiplying any signal with the COM signal or impulse train signal. ठीक है, तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सैम्पलिंग करके। सैम्पलिंग मतलब इंपल्स ट्रेन या कॉम सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट सैम्पल्ड सिग्नल। क्वेश्चन लिखते हैं, a continuous time sinusoidal signal, continuous time sinusoidal signal cos 15t is sampled with a sampling period zero point 155 second, sorry 0.15 second. Find the period of, find the period of new discrete time सिग्नल। कोई कंटिन्यूस टाइम साइनसोइडल सिग्नल है, तो ये पीरियोडिक है या नहीं है, इट इज पीरियोडिक। द टाइम पीरियड इज 2π/15, so it is a periodic signal and it is sampled with a sampling interval of 0.15 second. Find the period of new discrete signal। तो हुआ क्या है, अगर मैं TS ले लूँ 0.15 सेकेंड, वेयर TS इज सैम्पलिंग इंटरवल। सो हमने जो FT था, FT को किस में कन्वर्ट कर दिया, NTS में। FT को किस में कन्वर्ट कर दिया, T को किस में कन्वर्ट किया, N में। और कितने टाइम सैंपल किया, TS टाइम। FT को NTS में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हमने डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है T,
इसका पर टाइम पीरियड सपोज t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है। t1 की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है e टू द पावर j ओमेगा नॉट t। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, ये साइनसोइडल सिग्नल है, ये साइनसोइडल सिग्नल है, जैसे cos t है, sin t है। मैंने बताया था कि वॉट एवर इज एप्लीकेबल फॉर cos t एंड sin t is also applicable for e to the power j omega naught t, and what is applicable for j omega naught t e to the power j omega naught t is also applicable for cos t and sin t। अब हमने क्या किया, इसमें सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, t की जगह ओमेगा नॉट एंड टी एस पुट कर देंगे। t की जगह ओमेगा नॉट एन टी एस पुट कर देंगे। इफ, अब नया सिग्नल क्या हो गया, ये दिस इज न्यू सिग्नल। इफ e to the power j omega naught n ts to be periodic with fundamental time period n, इसको ले लेते कैपिटल N, then e to the power j omega naught n ts should be equal to e to the power j omega naught n plus n ts। ये था ना, fn should be equals to fn plus n, ft should be equals to ft plus minus kt। ये दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। अगर ये पीरियोडिक है, अब देखो ये जो हमने देखा था कि ये पीरियोडिक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर ये नया सिग्नल पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड n, इन दैट केस e to the power j omega naught n ts should be equals to e to the power j omega naught n plus n, यानी कि अगर हम इतने टाइम पीरियड, इतने सारे सैंपल्स के बाद देखें तो वापस से हमें ये सिग्नल मिल जाना चाहिए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल टाइम पीरियड। सो अब यहां देखो, e to the power j omega naught n ts should be equal to e to the power j omega naught n ts into e to the power j omega naught n कैपिटल N ts, और मैं इसको लिख दूं e to the power j omega naught n ts into 1 is equals to e to the power j omega naught n ts into e to the power j omega naught capital N ts। It means e to the power j omega naught n ts is equals to 1, and e to the power j omega naught n ts is 1 if e to the power j 2 pi k n, सॉरी 2 pi k, 2 pi k क्या होता है, cos 2 pi k n plus j sin 2 pi k n। इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाता है, 1। कहीं पे भी आपको अगर 1 दिखाई दे तो आप उसको e to the power j 2 pi k से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर k इज इंटीजर। ये मिल गया आपको। इट मीन्स ओमेगा नॉट एन टी एस इज इक्वल्स टू 2 pi k
ओमेगा नॉट इज 2 पाई बाई टी एन टी एस इज इक्वल्स टू 2 पाई के, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, टी बाई टी एस इज इक्वल्स टू एन बाई के, टी बाई टी एस इज इक्वल्स टू एन बाई के, यहाँ से निकल के आ गया। डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमें वैल्यू पता है, देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट एन। वी हैव टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 15 एंड टी एस इज इक्वल्स टू 0.15, है ना, के एनी इंटीजर, के इज एनी इंटीजर, तो इसमें वैल्यू पुट करो। टू पाई बाई 15 डिवाइड बाय 0.15 is equals to n divided by k. So n is equals to 2 pi by 15 into 0.15 into k. So n is equals to 20 by 15 into k. So 4 by 3k. If k is equals to 3, then n is equals to 4. If k is equals to 6, then n is equals to 8. If k is equals to 12, then if 9, if k is equals to 9, then n is equals to 12. If k is equals to 12, then n is equals to 16. So what is the fundamental time period? Minimum integer. यही मैंने आपको बताया। Fundamental time period is minimum integer. So for this signal, fundamental time period is n by n is equals to 4. So हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। If a continuous time signal is sampled, नॉर्मल एक फॉर्मूला आ जाएगा। If a continuous time signal is sampled with Ts, if a continuous time signal with period T is sampled with Ts, then the resulting discrete time signal will have fundamental time period n is equals to T by Ts into k. ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया। और ये जो हमने डेरिवेशन किया ना अभी छोटा सा, ये डेरिवेशन कई बार 15 मार्क्स का पूछा गया आईईएस एग्जाम में, कई बार पूछा गया। सिर्फ 4 लाइन का डेफिनेशन है तो डेरिवेशन है और 15 मार्क्स का पूछा गया। To derive the expression for determine the expression for, derive the expression for finding the fundamental time period of a discrete time signal if it is derived from a continuous time signal with period t sampled at a sampling interval of ts. तो डायरेक्ट ये निकल के आ जाता है n इज इक्वल्स टू टी बाई टी एस इंटू के। आप वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। के की वैल्यू डालो तो जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू है वही आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सर सर वो 1 इक्वल टू ई टू द पावर जे इंटू 2 पाई के कैसे आया था, वो समझ ही नहीं आया।
ये होगा ना। और अगर मैं e टू पावर 2πk ले लेता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 2πk प्लस जे साइन 2πk। देखो इसकी वैल्यू है 2π मीन्स 360, तो cos 360 प्लस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, वैल्यू इज cos 0, cos साइन 0, ये तो 0 हो गया और ये हो गया 1, वैल्यू इज 1। अगर आप कभी भी इसको 2π के मल्टीपल्स में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू 1। तो अगर कहीं पर भी 1 लिखा हुआ है तो यू कैन रिप्लेस, और अगर मैं लिखूं e टू पावर पाई बाई 2 तो क्या मिलेगा आपको, cos पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इज 0 प्लस जे। तो अगर आपको कहीं पर भी जे दिखाई दे लिखा हुआ तो आप उसको रिप्लेस कर दो, सिमिलरली अगर माइनस जे दिखाई दे उसके लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। तो कहीं भी 1 दिखाई दे लिखा हुआ और आपको कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। A periodic signal xt having fundamental time period is equals to 2 unit is defined as xt is equals to 2 for 0 to 1 and -1 for 1 to 2। एंड -1 फॉर 1 to 2, यानी कि सिग्नल कैसे होगा, 0 1 2, रिपीट तो 2 है और ये -1 होगा, फिर अगेन 2, फिर -1, फिर अगेन 2, फिर -1, इस तरह चलेगी। तो आप इसको देखो, इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड so on। इस सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, 2। द क्वेश्चन इज इफ gt is equals to sigma k is equals to minus infinity to infinitive del t minus 2k and d by dt xt is equals to a1 gt minus t1 plus a2 gt minus t2। Find a1 a2 t1 t2। xt को सिग्नल दिया हुआ है, gt को सिग्नल दिया हुआ है, xt और gt में रिलेशन बताया हुआ है और अननोन फाइंड्स करने के लिए बोल रहा है। तो हमने ये देख रहे हैं कि इसने क्या किया है, सबसे पहले
डी बाई डी टी एक्स टी किया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी टी क्या है और एक्स टी क्या है। तो ये तो आपका एक्स टी है और जी टी क्या है, डेल टी माइनस टू के इज इक्वल्स टू 0, डेल टी क्या मिलेगा आपको, ये k इज इक्वल्स टू 1, डेल टी माइनस टू टी माइनस, then t minus 4, then 6, then minus 2, minus 4, minus 6. It is nothing but gt. तो ये आपको gt मिला। तो gt है अपने पास, xt है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ xt। सो कैलकुलेट d by dt xt। सो d by dt xt मीन्स, देखो 0 पे कितने का स्टेप है, -1 से 3 का स्टेप है। स्टेप कन्वर्ट हो जाता है इम्पल्स में। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 0 पर, -1 से 3 का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट इज 1 पर कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 2 से -1 आया, तो 1 पर आपको मिलेगा -3 का डिक्रीमेंट। फिर 2 पर देखो, 2 पर अगेन इंक्रीमेंट है कितने का, 3 का, और फिर 3 पर -3 का डिक्रीमेंट, देन 4 पर +3 का डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। तो ये मिल गया आपको डी बाई डी टी एक्स। इधर अगर आप देखोगे तो -1 पर आपको -3, -2 पर 3। ठीक है, तो दिस सिग्नल इज डी बाई डी टी एक्स टी। अब जरा इस सिग्नल और इस सिग्नल में देखो कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं है। ये भी कॉम सिग्नल है और ये भी दो कॉम सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, एक तो ऊपर की तरफ है इम्पल्स और एक नीचे की तरफ है। जरा दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 0, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का। ऐसे यहाँ पर 0, 2, 2, 2, इनके बीच में भी डिफरेंस 2 का है। तो 0 पर भी एक इम्पल्स है, 0 पर भी एक इम्पल्स है। बट जो नीचे वाली है, नीचे वाली में देखो -1 से 1 के बीच में डिफरेंस 2 है, 1 से 3 के बीच में डिफरेंस 2 है। तो यानी कि ये नीचे वाली इम्पल्स, यानी कि ये -gt वाला सिग्नल है। इस gt को मैं -gt कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा, और इसको अगर मैं -1 की तरफ लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। या तो मैं तो या तो इस सिग्नल को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 1, या राइट में शिफ्ट कर दो 1, तो ये मिल जाएगा। अभी देखते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। डिफरेंशिएशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर इस GT में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा, सपोज ये F1T ले लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 0, 3, 2, 3, 4, 3 एंड सो ऑन, -2, 3। तो ये ऊपर वाली पल्स मुझे मिल रही है एज इट इज। अगर मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एज इट इज मिल रही है। F2T देखते हैं, F2T -G, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई है, -3 से, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 है। -3T
प्लस माइनस वन, या तो प्लस कर लो या माइनस वन कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, F2t ये माइनस वन, वन, थ्री, फाइव, सेवन, ये माइनस थ्री, और ये सब मिलेगा थ्री। सो व्हाट इज डी बाई डी टी एक्स टी? d by dt xt is the summation of these two pulses। तो टाइम इंस्टेंट कोलाइड नहीं कर रहे हैं इन दोनों में से किसी के भी, तो ये एज इट इज ये वाला सिग्नल बन जाएगा, डी बाई डी टी इज एक्स टी इज F1t प्लस F2t। F1t इज 3gt माइनस 3gt प्लस माइनस वन। इसको कंपैरिजन करते हैं, A1 जी टी माइनस टी वन प्लस A2 जी टी माइनस टी टू। तो A1 इज इक्वल्स टू 3, A2 is equals to minus 3, T1 is equals to 0 and T2 is equals to plus minus 1। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल इज find the fundamental time period of two periodic signals of summation of more than one periodic signals। अगर मेरे पास कोई सिग्नल है एफ टी इज इक्वल्स टू F1t प्लस F2t प्लस F3t एंड सो ऑन, और Fn इज इक्वल्स टू F1n प्लस F2n प्लस F3n एंड सो ऑन, तो मुझे कैसे निकालना होगा फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका और इसका। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कंटिन्यूस टाइम में, कंटिन्यूस टाइम में कैसे करेंगे। इफ सपोज इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है, इसका टाइम पीरियड T3 है, एंड दीज आर रेशनल, दीज आर रेशनल। तो सपोज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, N1 N2 by D2 N3 by D3, then omega naught will be HCF of N1 N2 N3 and so on divided by LCM of D1 D2 D3 and so on। ठीक है,
सेकेंड, ये ऐसे लिख लो इसको ना, ओमेगा 1 पर। फंडामेंटल टाइम पीरियड में इसको ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 कर लो। HCF ऑफ N1, N2, N3। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, T is equals to cos 4 pi by 3t plus sin 3 pi by 2t। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है? इसकी ओमेगा 1 कितनी है? 4/3 पाई। इसकी ओमेगा 2 कितना है? 3/2 पाई। ठीक है। सो ओवरऑल ओमेगा नॉट कितना होगा? ओमेगा नॉट विल बी HCF ऑफ 4 पाई एंड 3 पाई, LCM ऑफ 3 and 2। HCF of 4 pi and 3 pi will be pi, and LCM of 3/2 is pi by 6. So omega naught is equals to pi by 6. So T is equals to 2 pi by omega naught. T naught will be, so 2 pi by pi into 6, pi से pi cancel हो गया। Fundamental time period of this signal will be 12। डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल इज 12। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, summation of 2 or more continuous time periodic signal is periodic if fundamental time period of individual is rational. It means T1, T2, T3 and so on must be rational. अगर कोई भी सिग्नल आपको दिया हुआ है, कितना भी सबमिशन है उसका, तो आप ये देखेंगे कि T1, T2, T3 यानी कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड T1 है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड T2 है। ये अगर रेशनल होंगे तभी ये फंक्शन, ये सिग्नल क्या होगा? पीरियडिक होगा। अगर ये रेशनल नहीं है, इन दैट केस ये फंक्शन पीरियडिक नहीं होगा और यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या मिलेगा? इरेशनल। और कैलकुलेशन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, जो यहाँ पर ओमेगा नोड में लिखा हुआ है उस ओमेगा नोड को डायरेक्ट लिख लो। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, और आपको फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली फंडामेंटल टाइम पीरियड। So for the continuous time signal, it is a condition that if two or more signals are added, then individually their fundamental time period should be rational, then only overall signal will be periodic, otherwise the signal will be aperiodic. While for the discrete signal, what happens? For the discrete signal, देखो अगर कोई मैं डिस्क्रीट सिग्नल लेता हूँ F1n प्लस F2n, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड N1 है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड N2 है। हमें पता है N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स ये हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। और ये हमेशा क्या होगा? ये भी इंटीजर होगा। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर विल ऑलवेज बी रैशनल। So इसमें N1 by N2 will always be rational. So if
इन द डिस्क्रीट टाइम क्या हो जाता है कि अगर कोई दो पीरियोडिक सिग्नल ऐड होते हैं तो ये वाला सिग्नल विल ऑलवेज बी पीरियोडिक, will always be periodic. But for the continuous time, it may or it may not be periodic. Depending upon the individual time, fundamental time period should be rational. Okay? So it completes your periodic and aperiodic signal. In the next class, that is on Monday, we will complete energy and power signals finally. And after that, all the signals will be completed, basic of the signals will be completed, and we will move on to systems.